Hi, it's a very good morning to all of you. So, concept wise, the concept we need to solve the exercise of the chapter circle that we finished. Now we'll move on to the exercise, that is starting is 10.1 today we'll do, then tomorrow we'll do 10.2. To see, in 10.1, the first question is exercise 10.1, question number 1. How many tangents can a circle have? This is the basic exercise on the circle. Then 10.2 we will have the exercise on the concept. So the question is how many tangents can a circle have? बोला कि एक सर्कल का कितने टेंजेंट हो सकते हैं. हमने बता दिया कि ये एक सर्कल है, इट इज मेड अप ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स. ये सारा पॉइंट से बना हुआ है ये सर्कल. ईच एंड एवरी पॉइंट वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट. इसमें बना सकता हूँ, इसमें बना सकता हूँ, इस पॉइंट में इधर बना सकते हैं, इस पॉइंट में इधर बना सकते हैं. दैट मीन्स ए circle can have infinite number of tangents. Why? Because a circle is a combination of infinite number of points, and each and every point we can draw a tangent. So infinite number of tangents a circle can have. The first question is answer infinite number of tangents. How? See, answer is simple, 1 mark question, but the concept also I am giving you. आपने सिर्फ लिखना है कि a circle can have infinite number of tangents because circle is a combination of infinite number of points and each point can have a tangent like that. तब अच्छा होगा. Good. Next question is fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in dash point. ब्रैकेट में ऐसे लिख रखा. तो क्वेश्चन में ये है कि एक टेंजेंट. सी you open up your NCERT book 10.1 exercise I am doing. Question number 1 I have done. Then question number 2 fill in the blanks में बोला कि एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट में काटते हैं. एक पॉइंट में काटते हैं. A tangent touches the circle at only one point. Got it ना? एक टेंजेंट एक सर्कल को एक पॉइंट पे, तो a tangent to a circle intersect it in dash point, one point. Got it? Next 2 का क्वेश्चन नंबर 2, a line intersecting a circle in 2 points. A line intersecting a circle in 2 points is called a. इसका हिंदी मतलब है कि एक लाइन इंटरसेक्टिंग है सर्कल इन 2 पॉइंट्स. इस लाइन को क्या बोलते हैं जी? अब बताओ. सेकेंड बोलते हैं. एंड इफ द लाइन सेगमेंट इज अप टू दिस, कि इफ a line segment connects 2 points on the boundary of the circle, that is known as chord. chord और सेकेंड में क्या फर्क है? ये तो chord है जी, और इसको एक्सटेंड कर दूंगा लाइन. स्टार्टिंग क्लास में मैं बोला था ना, तो दैट बिकम्स ए सेकेंड. तो ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड. नेक्स्ट बोला, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. जस्ट आई वांट टू मेक यू नो दिस थिंग दैट 2 सर्कल कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकते हैं. 2 सर्कल एक बार तो ऐसा हो सकता है कि दोनों का कॉमन पॉइंट हो भी नहीं सकता. इसमें एक बार तो ऐसा हो सकता है कि 2 सर्कल जी 2 पॉइंट में काट कर सकता है. Got it? That means 2 circle may not have any common point. The 2 circles may have 2 common points. The 2 circle may have only 1 common point. Got it now? This is externally. See, condition 4 condition are there. 2 circles may not have any common point. Next case, the 2 circle may have 2 common points. The 2 circle may have only 1 common point externally, and the 2 circles may have 1 common point internally. This is internal common point. और बाद में कंसेप्ट आएगा, हम बताते रहेंगे. ये क्वेश्चन में बोला कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज ए, मतलब एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट में काटने वाले लाइन को बोलेंगे सेकेंड. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ए सर्कल कैन हैव, क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट को क्या बोलेंगे कि एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड. स्टार्टिंग क्लास में बोला था. नेक्स्ट 3 पार्ट में बोला ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट. बोला कि एक सर्कल का एट द मोस्ट मीन ज्यादा से ज्यादा. तो एक सर्कल का ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकता है? एक सर्कल है, ये डायमीटर का एंड में जो टेंजेंट बनाएंगे ना वो दोनों पैरेलल टेंजेंट है, याद रख लेना.
द टू, ये प्रूफ आएंगे 10.2 में एक क्वेश्चन है, वो प्रूफ कर देंगे तब क्लियर होगा। वैसे द टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर आर पैरेलल, लेकिन इस सर्कल में ये कॉर्ड है, ये दोनों एंड पॉइंट में जोड़ने वाला टेंजेंट ये क्या होगा, ये नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा। दे विल मीट हियर, इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा वो, गॉट इट ना। लेकिन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर का एंड में दोनों, डायमीटर का एंड पॉइंट में दोनों टेंजेंट बनाने वाला टेंजेंट पैरेलल होता है, गॉट इट। इसको क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा, तो अभी इतना याद रखो। तो क्वेश्चन बोला कि एक सर्कल का ज्यादा से ज्यादा कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। भाई एक डायमीटर इधर है, डायमीटर तो ऐसा भी हो सकता है, तो इधर भी ये दोनों पैरेलल टेंजेंट होएगा। तो डायमीटर इधर भी हो सकता है, तो इधर भी ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। दैट मीन्स सिंस द डायमीटर्स आर इन्फिनिट, सिंस ए सर्कल कैन हैव इन्फिनिट डायमीटर्स, गॉट इट ना। Any chord will be passing through the center is known as diameter. So the circle can have infinite number of parallel tangents. Got it ना। क्वेश्चन बोला था एक सर्कल का ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, तो हम बोलेंगे एक सर्कल का ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिट नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट हो सकेंगे। व्हाई? बिकॉज एक डायमीटर का एंड पॉइंट में टेंजेंट बनाने वाला टेंजेंट दोनों पैरेलल होता है। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर पैरेलल एंड a circle have infinite number of diameters, so at each and every diameter we can have two parallel tangents. So that is how we can get infinite number of parallel tangents to a circle. अच्छा, next question, ये थर्ड वाला हो गया। फोर्थ बोला the common point of a tangent to a circle and the circle is known as, बोला कि टेंजेंट का और सर्कल का कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, कल बोला था ना, ए पॉइंट वो सर्कल का बाउंड्री पे भी होता, द पॉइंट दैट इज ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल ऑल्सो, दैट लाइज ऑन द टेंजेंट ऑल्सो, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, गॉट इट ना। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स करके साथ अगर उसका जस्टिफिकेशन दे दोगे ना तो और अच्छा होगा, कंसेप्ट और आपका टाइट हो जाएगा, गॉट इट ना। नेक्स्ट सी, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग, बोला ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। बोला कि एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, टेंजेंट पी क्यू है पॉइंट पी पे, दैट मीन्स ये सर्कल है, रेडियस कितना है जी 5 सेंटीमीटर दे रखा। एक पी क्यू टेंजेंट है, ये मान लो पी क्यू टेंजेंट, ये पी क्यू टेंजेंट मान लो। बोला कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज पी, और ये पी क्यू टेंजेंट बोला तो इसलिए पी क्यू टेंजेंट हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज पी। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। बोला कि ओ सेंटर है और ओ क्यू कितना है जी 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है कि है, स्टेटमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज देखो फिर से इजी बना दूंगा स्टेटमेंट को मैं। देखो इट इज गिवन दैट इट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द सेंटर इज ओ, पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो डायग्राम बना लिया हमने, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी क्यू इज द टेंजेंट, दैट मीन्स इधर पॉइंट क्यू होगा, पी क्यू टेंजेंट, टेंजेंट का नाम पी क्यू बोला, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा तो क्यू ये होगा, सेंटर ओ बोला, गॉट इट ना। तो द क्वेश्चन इज लाइक दैट कि पी क्यू टेंजेंट meets the circle at the point P whose center is O, whose radius is 5 centimeter and such that OQ is 12 centimeter, it is given। तो ये आपको पता है, दिस इज रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन। तो आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, इन द क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड द लेंथ PQ। तो इसमें पाइथागोरस लगा दो ना आप, इसमें पाइथागोरस ये 90 डिग्री होता है, आपको पता है, सेकंड थ्योरम, सेकंड या फर्स्ट थ्योरम कोई सा रहने दो, वो हमने बस सेकेंडली प्रूफ किए थे इसलिए बोला। हाँ, तो ये 90 डिग्री होता है, तो इसमें ओ क्यू पी में ओ क्यू स्क्वेयर इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस क्यू पी स्क्वेयर। तो दिस विल इंप्लाइज ओ क्यू स्क्वेयर कितना है 12 का स्क्वेयर, ओ पी स्क्वेयर कितना है 5 स्क्वेयर प्लस क्यू पी स्क्वेयर, यू नीड टू फाइंड आउट। Why we are applying this Pythagoras theorem? Because we know this is the right
angle and we can apply Pythagoras theorem in right triangle. That is why. तो ये 144 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 25 प्लस क्यू पी स्क्वायर. तो क्यू पी स्क्वायर को उधर ही रहने दो, चलो इसको नहीं लाना. ये 25 को इस तरफ ले आऊंगा तो माइनस हो जाएंगे. 144 minus 25 is 119 equal to QP square. So this will implies QP equal to root over 19. So the option is fourth is the D. D is the option. Next, last question. Only 2 minutes we are left with. This is question number 3. Next question number 4. See, take a screenshot. Do this. See. इतना लिख के यहाँ पे आंसर मत कर देना. वाई? बिकॉज वी आर गिवन द लेंथ इन सेंटीमीटर. तो देयर फॉर क्यू पी इक्वल टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर कर देना. अगर ये मीटर पे दिया होता हमारा, सपोज मीटर पे दिया होता तो इसमें मीटर पे कर देते हैं ना. जो जैसे भी दिया रहेगा उस हिसाब से हमको आंसर करना होता. तो इतना में नहीं, देयर फॉर 100 में. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ड्रॉ ए सर्कल. क्वेश्चन नंबर 4 में चलो अकॉर्डिंग टू द कमांड, जो हमारे को क्वेश्चन में जो कमांड दे रहा है, जैसे कंप्यूटर में हम कमांड देते हैं, कंप्यूटर वैसा ही टास्क कर लेता. तो जो क्वेश्चन में हमारे को कमांड दे रखा है उससे ही चलते हैं. बोले ड्रॉ ए सर्कल. चल ड्रॉ ए सर्कल कर दिया. ड्रॉ ए सर्कल, फर्स्ट कमांड वी डिड. नेक्स्ट बोला एंड टू पैरेलल लाइंस टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड. बोला कि ये गिवन लाइन है, लिखूंगा O is the center of the circle. O is the center of the circle. PQ is the given line. PQ is the given line. बोला कि draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent. अब बोला कि इससे इस लाइन से पैरेलल जाने का एक टेंजेंट बनाना, एक सेकेंड बनाना. टेंजेंट तो बना दूंगा जी ये, और सेकेंड बना दूंगा जी ये. क्या लिख दूंगा? लिख दूंगा एक्स वाई इज द टेंजेंट. एक्स वाई इज द टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट में है जी? आर पॉइंट में है. और ए बी इज द सेकेंड. क्यों? आपको बोला कि एक सर्कल बनाओ और एक लाइन से दो पैरेलल लाइन बनाओ जो एक टेंजेंट हो एक सेकेंड हो. तो ये लाइन पी क्यू हमने ले लिया था गिवन लाइन, ये सर्कल ले लिया था तो एक टेंजेंट बना दिया. ऐसा नहीं कि टेंजेंट इधर भी बना सकते हो आप, लेकिन इधर नहीं बना सको क्योंकि इसका पैरेलल होना चाहिए. टेंजेंट भी इससे गिवन लाइन से पैरेलल होना चाहिए, सेकेंड भी इससे पैरेलल होना चाहिए. गॉट इट ना? तो दिस इज जस्ट द बेसिक. आप एक बार कर लेना इसको, फिर एक बार यू ट्राई द एग्जाम्पल्स एट होम. फिर हमने 10.2 करेंगे कल. गॉट इट ना? दैट इज द कंसेप्चुअल एक्सरसाइज. ओके, बाय.